wait a second, sir. And the important points. Okay, so I'll share my screen. Let us start with the lecture. So सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए. Thank you. Okay. Now, this is the name of the chapter. We are starting with chapter number 4, that is structure of ocean floor. Okay, so now there will be a question in your mind ki why we are learning about ocean floor. Because जितना continents important है उतना ocean भी important है. So it is very important to learn about the structure of ocean. Okay, because aquatic life and oceanic life is much more important in our basic life. So let us understand how ocean floor or how the structure of ocean floor is done. Because kaise ki we know how continents are made because we can see it, but structure of ocean floor अगर देखना है तो अपने को समझना जरूरी है, because we don't see the structure of ocean floor because it is beneath the ocean, so it is not possible to see it. Okay, so यहाँ पर हम लोग उसके बारे में जानने वाले हैं. Okay, so let us start with the chapter. ये जो भी जितना भी activities है will be doing at the end of the chapter. ठीक है, because एक बार chapter समझेगा तभी हम लोग करेंगे. So we are starting with geographical explanation. If you see the screen carefully, I'll be reading out and I'll be explaining you. You have to underline the important sentence or points. Now we know that the proportion of water and land is uneven. सबको पता है, बचपन में हमने पढ़ा हुआ है कि water ज्यादा है, land कम है. 71% is covered with water and 29% is covered with land. अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर को भी डिवाइड करेंगे ना, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड है और साउथ हेमिस्फीयर में कम है. अगर आपको ये लेक्चर एंड होने के बाद में आप गूगल में मैप में देखना, यू विल सी दैट द परसेंटेज ऑफ लैंड इज लेस इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज मोर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड इज अनइवन. जबकि जो ओशन के नीचे जो लैंड है वो भी एक पार्ट था कॉन्टिनेंट का इनिशियली, बट बिकॉज ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर दैट लैंड वाज कवर्ड अंडर वाटर. समझा क्या? पहले सब जगह कॉन्टिनेंट था, बट जैसे रेनफॉल चालू हुआ, ठीक है, जैसे पानी अर्थ पे आया, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर. ठीक है, दैट इज 71%. सो वी नो दैट, वापस मैं वो सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, वी नो दैट द प्रपोर्शन ऑफ वाटर एंड लैंड is uneven on the earth. Around 71% of the surface is covered by water, but there is land even below the water. That is ocean floor जो बोल रहे हैं वो भी land ही है, but that is below the ocean. That's why we call it as ocean floor. ठीक है? Now we classify the various landforms on the earth. Yes or not? हमने earth पे देखा है कि we know this is mountain, this is plateau, this is plain, this is a rift valley, दिस इज ब्लॉक माउंटेन. हमको ये क्लासिफिकेशन पता है, ठीक है, अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट्स है उस पे वो क्लासिफिकेशन पता है, बट वी आल्सो शुड नो अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ओशन फ्लोर. मतलब ओशन के अंदर जो लैंडफॉर्म है उसका भी क्लासिफिकेशन जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, सो लेट अस गो थ्रू दैट. मैं सेकंड ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूँ, मैं वो एक्टिविटीज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज चैप्टर खत्म होने के बाद में वो एक्टिविटीज करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. Now, if you talk about classification of ocean floor, जैसा मैंने बोला कि land पे classification होता है, land का classification क्या है? Mountains, plains, plateaus. वैसे ocean floor का भी classification होता है. तो if you talk about the relief of ocean floor, अभी relief का मतलब क्या है उसको underline करना. Relief means height. Relief का मतलब क्या है? Height. ठीक है, वो इंग्लिश वाला रिलीफ नहीं है, वाटर रिलीफ वैसा वाला रिलीफ नहीं है, ये रिलीफ मींस हाइट. तो उधर अंडरलाइन करो और उसके ऊपर लिखो हाइट. ओके. Now land submerged below ocean water is called as ocean floor. अगर क्वेश्चन आया वन लाइन, what is ocean floor? So when the land is submerged under water, submerged का मतलब क्या है? पानी के नीचे जाना. ठीक है, sink below the water. Submerged मतलब क्या? पानी के नीचे. उस लैंड को बोलते हैं ocean floor. क्या बोलते हैं? Ocean floor. Now the relief of the ocean floor, अभी मैंने बोला था relief मतलब क्या? Height. The relief of the ocean floor is decided upon the depth from the sea floor. मतलब the height of the ocean floor is decided from the depth of the sea floor. मतलब ocean floor से उस landform का height decide होता है, relief decide होता है. Because नीचे जैसा
कॉन्टिनेंट्स पे लैंड अनइवन है ना, वैसे ओशन फ्लोर का भी लैंड अनइवन है, ठीक है, सेम नहीं है, कहीं कहीं पे ज्यादा हाइट है, कहीं कहीं पे कम है, कहीं कहीं पे मीडियम है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिलीफ. डेप्थ फ्रॉम द सी फ्लोर एंड द शेप ऑफ द लैंड, बिकॉज लैंड का शेप भी डिफरेंट होता है, कहीं कहीं पे डोम शेप्ड होगा, कहीं कहीं पे माउंटेन शेप्ड होगा, ठीक है, कहीं कहीं पे प्लेन होगा, तो शेप भी चेंज होता है, ठीक है, सो इट इज नॉट इवन एवरीवेयर. So let us learn this one by one. Next one is the average depth of the ocean is around 3,700 meter. ये average है, इससे भी deep है जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, but the average depth is 3,700 meter. इसको भी underline करना, ठीक है, underline this point. Okay. Next is the ocean bed is also uneven like land. जैसे मैंने बोला, जैसे landform uneven है अपने अर्थ पे, वैसे ocean floor भी uneven है, ऊपर नीचे है, ठीक है, सेम लेंथ और सेम हाइट का नहीं है, ओके. नेक्स्ट इज द ओशन फ्लोर. अभी ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज फिगर 4.2, ठीक है, ये डायग्राम के बेसिस पे हम लोग देखेंगे. कैन यू सी दिस डायग्राम? इफ यू सी द ओशन फ्लोर, इट इज गिवन, इट इज डिफरेंशिएटेड, इट इज क्लासिफाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स, starting with continental coast till the next one, that is Mariana Trench और मिड ओशन रिज और कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ये सब चीजें है ना, ये सब क्लासिफिकेशन जो हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो जब ये पढ़ूंगा तभी मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा. Now the ocean floor relief consists of all submerged landforms. The structure of the ocean floor differs from ocean to ocean. मतलब if you see the ocean floor of Pacific Ocean, it will be different from Atlantic Ocean, it will different from Indian Ocean. क्योंकि ये लैंडफॉर्म्स कैसे के दे डिफर, बिकॉज दे आर फाउंड बिकॉज ऑफ जियोलॉजिकल चेंजेस ऑन दी अर्थ. तो हर ओशन का आपको लैंडफॉर्म अलग दिखेगा, सेम नहीं रहता है, ठीक है. जैसे कि आप अर्थ पे भी लैंडफॉर्म देखेंगे तो इंडिया का लैंडफॉर्म और चाइना का लैंडफॉर्म में डिफरेंस होगा, इंडिया का लैंडफॉर्म और यूरोप का लैंडफॉर्म में डिफरेंस होगा, ठीक है, वैसे ओशन में भी डिफरेंस होता है. As we go away from the coast, the structure of the ocean floor changes. मतलब कैसे कि जो कोस्टल एरिया मतलब क्या, जहां पर आप लोग रहते हो, जैसे कि मुंबई इज नियर कोस्टल एरिया, जैसे आप कोस्टल एरिया से आप आगे बढ़ते हो टुवर्ड्स द ओशन, देयर विल बी चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंडफॉर्म. जैसे ये इमेज में दिया है, देखो, कॉन्टिनेंटल कोस्ट के बाद में द नेक्स्ट वन इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, then it is continental slope, then it is abyssal plain, see the diagram carefully, then it is mid ocean ridges, then it is trenches and deeps. तो कैसे देखो, the landform is changing, it is not same, ठीक है, तो हम लोग ये एक एक करके पढ़ने वाले हैं, सो प्लीज ध्यान देना यहाँ पे. तो सबसे पहला वाला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है. नाउ द सी, द आइलैंड नियर द कोस्ट and submerged under the sea is called as continental shelf. The land near the coast and submerged under the sea
Hello everyone, can you hear me out? Is my voice audible? Okay, I think there was an internet issue. Till what topic you heard? Can you help me out with till what topic you heard? Okay, so we'll start with continental shelf again. Yeah, kindly hold. I am sharing my screen with you. Okay. So we were doing continental shelf. I'll start the part again, the topic again. So please consider it over here. As I said, continental shelf is the land near the coast and submerged under the sea. Means what they want to say is the part of some part of the land is connected to the coast and some part is submerged under the sea. But the depth is not deep. It is not shallow. It is not deep. It is shallow. Shallow बोलेगा तो कैसे है कि you can walk. ठीक है, you can reach the continental shelf. ठीक है, this is the shallowest part of the ocean bed and it is also called submerged coastland and its slope is gentle बोलेगा तो क्या यहाँ पे वो steep नहीं है, आप जल्दी नीचे नहीं जाओगे, आराम से जाता है. gentle बोलेगा तो आराम से. ठीक है, there are two types of slope, one is steep slope and one is gentle slope. gentle slope मतलब आराम से, steep slope मतलब कैसे है कि it will be like fast. Okay, now the extent of the continental shelf is not uniform everywhere. कुछ ओशन के पास में कॉन्टिनेंटल शेल्फ 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलता है और कोई कोई ओशन के पास में कॉन्टिनेंटल शेल्फ नैरो है, मतलब एब्रप्टली खत्म हो जाता है. So the length of continental shelf is not uniform everywhere. Near some oceans it is narrow. Try to understand this. Near some ocean it is narrow and in some ocean it goes for kilometers. वो यहाँ पे दिया है देखो. Now the extent of the continental shelf is not uniform everywhere. It is narrow along the coast of some continents while it is broad for hundreds of kilometers of others. For example, if you go to Arabian Sea, if you talk about India, so India में the continental shelf it extends around kilometers. But if you go to countries like Africa, there some of the continental shelves are narrow, मतलब फटाफट खत्म हो जाता है. ठीक है, तो वो भी डिफर होता है. Okay, next is while it is broad for hundreds of kilometers at other, its depth is up to 200 meters. मतलब the average depth of continental shelf is 200 meters. ये याद रखना, fill in the blanks में पूछते हैं, इसको underline करना. The average depth of continental shelf is 200 meters. ठीक है. Now ये जो continental shelf है ना, इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत है. इकोनॉमिकल मतलब क्या है, इससे पैसा मिलता है, कैसे मिलता है वो देखते हैं. ठीक है. Now the continental shelf is very important. I'm reading the second paragraph. The continental shelf is very important from the point of view of humans. Extensive fishing, मैंने बोला ना इकोनॉमी, पैसा मिलता है. फिशिंग क्यों करते हैं, कमाने के लिए. Extensive fishing grounds are found in the continental shelf. Why fishing grounds are found over here? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि continental shelf is shallow, तो यहाँ पे सनरेज इजीली पहुंचता है और जब पानी में सनरेज इजीली पहुंचेगा तो वहां पे प्लांट्स और एल्गी ग्रो होंगे. और जो पानी में प्लांट्स ग्रो होते हैं वहां पे लिखा है देखो, उसको बोलते हैं प्लैंक्टन्स. PLANKTONS, प्लैंक्टन्स. प्लैंक्टन्स आर द प्लांट्स व्हिच ग्रो इन द वाटर. और ये जो प्लैंक्टन्स है ना, ये है फिश फूड. मतलब फिशेस यहाँ पे ये प्लैंक्टन्स को खाने के लिए आते हैं और जब ये फिश यहाँ पे प्लैंक्टन्स को खाने के लिए आते हैं तभी वहां पे फिशिंग होता है. ठीक है, इसके लिए फिशेस यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं. अगर पूछा व्हाई फिशेस अट्रैक्ट टुवर्ड्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ, बिकॉज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ द डेप्थ इज शैलो, दैट्स व्हाई द सनरेज रीचेस इजीली. And this is the reason that the plants grow over here, and that's why fishing is carried out on a larger scale near continental shelf.
और फिशिंग करने के बाद में वो फिशेस को मार्केट में बेचते हैं जिससे उनको पैसा मिलता है। इसके लिए बोला इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत है। अच्छा सिर्फ ये नहीं है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आपको, वो पैराग्राफ को ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आपको मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस भी मिलता है। ठीक है, मिनरल ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? बिकॉज मिनरल ऑयल से अपने को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब मिलता है, जिससे अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनता है, कार्स चलते हैं, ट्रेन्स चलते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल ऑयल मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है जिससे अपने घर का गैस चलता है। So these are the minerals which are found under the sea but near continental shelf. The best example is Mumbai High. मुंबई हाई करके एक जगह है अरेबियन सी में, जो मुंबई के पास में है बट पानी में है, इसके लिए उसका नाम दिया है मुंबई हाई। वहां पे एक प्लांट है ONGC प्लांट, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। उनका काम क्या है? पानी के अंदर से, ओशन फ्लोर में से मिनरल ऑयल निकालने का और बाद में अपने कंट्री को सप्लाई करने का। समझा? तो ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देखो कितना है। फिशिंग के लिए यूज होता है, मिनरल ऑयल निकालने के लिए यूज होता है, नेचुरल गैस निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो ये सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो याद रखना अपने यहाँ पे कहां से निकाल रहे हैं मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस? मुंबई हाई, लास्ट में जो दिया है एग्जाम्पल, मुंबई हाई। ठीक है, नाउ इट इज अ सोर्स फ्रॉम वेयर we obtain mineral oil and natural gas, and without mineral oil and natural gas, trust me, we cannot do anything. आपके कार्स नहीं चलेंगे, आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा, आपके ट्रेन्स नहीं चलेंगे, बेसिक जो चीजें है वो नहीं चलेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस वाज अबाउट कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अभी कॉन्टिनेंटल शेल्फ से जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो आता है स्टेज वो है कॉन्टिनेंटल स्लोप। अभी इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप क्यों दिया? बिकॉज इधर स्लोप स्टीप है। याद है हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्या पढ़ा था? द स्लोप वाज जेंटल, but here the continental slope is steep, that's why it is called as continental slope. अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस इमेज को फिर से, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्लोप देखो कैसा स्टीप है, देखो नीचे, कैन यू सी दैट? उसको एरो मार्क भी किया है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखो उसका स्लोप जेंटल है, आपको लग भी नहीं रहा है कि स्लोप है, बट कॉन्टिनेंटल स्टीप का जो एरो मार्क किया देखो कितना स्टीप है जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है। मतलब आप उधर से अगर नीचे जाएंगे तो एकदम फटाक से नीचे जाएंगे और आपको डैमेज भी हो सकता है। ओके, नाउ आफ्टर द एक्सटेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज ओवर, द स्लोप ऑफ द सी बेड बिकम्स स्टीपर। और जैसे जैसे स्टीपर, अभी आप देखेंगे आपने जब आप जाते हो बीच पे, जब आप पानी में जाते हो तो आपने एक्सपीरियंस किया रहेगा, व्हेन यू स्विम तो आपको धीरे धीरे नीचे का जो सरफेस है वो और नीचे नीचे जाते वक्त दिखता है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि अभी आपका पैर के नीचे कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज धीरे धीरे दैट कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज टर्निंग इनटू कॉन्टिनेंटल स्लोप। आपका वो नीचे का जो सरफेस है वो और स्टीप होते जा रहा है, इसके लिए यू कैन नॉट फील द ग्राउंड एज यू गो मोर फर्दर इन द सी। दिस इज द रीजन, बिकॉज नाउ यू आर crossing continental shelf and entering continental slope. That's why the slope is steeper. Now this is called continental slope, and the depth of the slope is from 200 to 3600 meters. इसको underline करना, the depth of the slope is from 200 to 3600 meters. fill in the blanks में आ सकता है, okay, या match the column में भी आ सकता है। In some places it is more. The continental slope is narrow. Obviously it is narrow because it is steeper. ठीक है, the lower boundary of the continental slope is considered to be the boundary of continent. मतलब यहाँ तक continent है, फिर continent खत्म हो जाता है। The lower boundary of continental slope, if you see this image carefully, आपको अगर दिख रहा है नीचे जहाँ पे वो स्लोप खत्म होता है वहां पे कॉन्टिनेंट का बाउंड्री खत्म हो जाता है, उसके आगे एक्चुअल ओशन चालू हो जाता है। ठीक है, मींस हियर द कॉन्टिनेंट स्टॉप्स, द बाउंड्री ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड्स एंड द बाउंड्री ऑफ द ओशन स्टार्ट्स। ठीक है, which type of landform makes the boundary of the ocean? आंसर आएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप। वहां पे
the boundary of continent ends and the ocean starts. ठीक है, तो ये था कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में. अभी आते हैं एबिसल प्लेन के बारे में. एबिसल मतलब क्या है? अ फ्लैट सरफेस इन द ओशन फ्लोर और ऑन द ओशन बेड. प्लेन मतलब क्या? वहां पे फ्लैट एरिया है, मतलब ऊपर नीचे कुछ नहीं है. इफ यू सी दिस इमेज, आपको दिख रहा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद एक पूरा फ्लैट सरफेस है. आपको दिख रहा है मिड ओशन रिज. मरीन आइलैंड दिख रहा है आपको? मरीन आइलैंड. तो मरीन आइलैंड और कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बीच का एरिया देखो फ्लैट है, उसमें कोई भी ऊपर नीचे ज्यादा नहीं है. इट्स टोटली फ्लैट. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एबिसल प्लेन. प्लेन मतलब क्या है? व्हेन द सरफेस इज फ्लैट. ठीक है, let us learn about abyssal plain. Now beyond the continental slope lies the abyssal plains, which are the flat part of the sea. मतलब ocean floor का जो flattest part है वो है abyssal plain. And the abyssal plain consists of various submerged landforms like hills, plateaus. If you see over here, आपको ये दिख रहा है ना मरीन आइलैंड, that is a part of hill. आपको यहाँ पे plateaus और hills ज्यादा मिलेंगे in abyssal plains. तो ये था एबिसल प्लेन के बारे में. नेक्स्ट वी कम टू माउंटेन रेंजेस एंड प्लेटोस. नाउ द हिल्स एंड द माउंटेन्स फाउंड ऑन द ओशन फ्लोर आर कॉल्ड एज सबमर्ज्ड हिल्स. ठीक है, सबमर्ज्ड क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये पानी के अंदर है. दिस हिल्स आर फाउंड अंडर द वाटर, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज सबमर्ज्ड हिल्स. हमने देखा है कि अर्थ के सरफेस पे माउंटेन्स होते हैं, बट पानी के अंदर भी माउंटेन्स होते हैं जो हमको दिखते नहीं है, because they are submerged under mountain. Sorry, they are submerged under water. Okay, so we find submerged hills and mountains. These hills are hundreds of kilometers wide. इसका width है 100 of kilometers and the height is in 1000 of meters. Some of the hills उनका जो पीक होता है वो पानी के ऊपर भी आता है, ओशन के ऊपर भी आता है. अब जब उनका पीक ओशन के ऊपर आता है ना, तो हमको क्या लगता है मतलब में वो आइलैंड है. ठीक है, जैसे कि आइलैंड्स विच आर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार, आपको दिखता है वो आइलैंड है, बट वो एक्चुअली आइलैंड नहीं है. दैट इज द पीक ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन. ठीक है, मतलब वो आइलैंड में अगर वो पानी के नीचे जाएंगे ना तो आपको पूरा माउंटेन भी दिखेगा. सो ये माउंटेन्स है जिसका पीक पानी के ऊपर आया है, इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं आइलैंड्स. बट दे आर नॉट आइलैंड्स, दे आर द पार्ट ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन्स जिसके ऊपर वेदरिंग हुआ है और अभी वो आइलैंड जैसा दिख रहा है. बड़ा आइलैंड नहीं होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ यू गूगल द पिक्चर ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, सी इट केयरफुली. इट लुक्स लाइक एन आइलैंड बट इट इज सबमर्ज्ड माउंटेन. ठीक है, यहाँ पे प्लेटोज भी मिलता है. वन ऑफ द फेमस प्लेटो इज चागोस प्लेटो. ठीक है, वन ऑफ द फेमस प्लेटो इज चागोस प्लेटो इन इंडियन ओशन. देखो पैराग्राफ के एंड में दिया है. अरेबियन अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है, वो एग्जांपल है. यहाँ पे प्लेटोज भी है. अच्छा, समिट्स मतलब क्या बनेगा? The summits of some marine islands are flat and extensive. Summits मतलब the point, the peak. मतलब वो pointed रहता है ऊपर mountain का, जो pointed रहता है उसको हम लोग summit बोलते हैं. That is the peak. वो peak कभी कभी flat होता है. वो flat क्यों होता है सर? Because of weathering, because of wind erosion, because of soil erosion, वो flat हो जाता है. ठीक है, पहले से flat नहीं रहता है. Okay. नेक्स्ट इज यहाँ पे चागोस प्लेटो भी मिलता है. चागोस प्लेटो है ना इंडियन ओशन का सबसे फेमस प्लेटो है. द लेंथ ऑफ दिस प्लेटो, इट लाइज इन द वेस्ट पार्ट, दैट इज इन अरेबियन सी. चागोस प्लेटो का जो लेंथ है, इट इज अराउंड 2500 किलोमीटर्स. एंड दिस प्लेटो इज अ पार्ट ऑफ ओशन फ्लोर. ठीक है, तो ये यहाँ पे मिलता है. तो ये था अबाउट mountains and hills. There are many mountains and hills which are found under the water, and some of the mountains they reach the surface of the ocean and they look like an island. Okay, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको ये मरीन आइलैंड लिखा है यहाँ पे, तो कैन यू सी दैट मरीन आइलैंड केयरफुली? तो पानी के ऊपर है, देखो थोड़ा. इफ यू सी दैट मरीन आइलैंड, इट इज लिटिल बिट अबव द वाटर. तो जो पार्ट पानी के ऊपर है ना वो आइलैंड जैसा दिखेगा आपको. नेक्स्ट वन इज मरीन डीप्स and marine trenches. Now what is the difference between marine deeps and marine trenches?
Marine deeps are a little bit shallow compared to marine trenches. उनका डेप्थ कम रहता है, इसके लिए उनको मरीन डीप्स बोलते हैं. लेकिन जिसका डेप्थ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बोलेगा तो बहुत ज्यादा है, उसको बोलते हैं मरीन ट्रेंचेस. अब मरीन ट्रेंच का हम बात करेंगे ना, तो सबसे बड़ा ट्रेंच यहाँ पे दिया है पैराग्राफ में, दैट इज द मरियाना ट्रेंच. उसको अंडरलाइन करना. द मरियाना ट्रेंच in the Pacific Ocean is the deepest trench in the world. The depth is 11,034 meters. ये पूरा सेंटेंस अंडरलाइन करो. The deepest trench is Mariana Trench located in Pacific Ocean and the depth is 11,034 meters. आपको मालूम है कितना डेप्थ है? इसका डेप्थ कितना डीप है? अपने हिमालयास देखा रहेगा, नहीं देखा रहेगा तो भी फोटोज में तो देखा रहेगा कितना बड़ा है. You know the highest peak of Himalaya is Mount Everest and the height is 8,848 meters. The height of Mount Everest. मतलब एक पूरा माउंट एवरेस्ट ये ट्रेंच में जा सकता है, बिकॉज ट्रेंच का डेप्थ वो माउंटेन से ज्यादा है. ट्राई टू इमेजिन द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8,848 meters and the depth of Mariana Trench is 11,034 meters. मतलब उसका डेप्थ वो माउंट एवरेस्ट से ज्यादा है. ओके ठीक है. तो this is the depth of that Mariana Trench and it is not possible to reach the depth. Now many scientists, many geologists, many oceanologists have tried to reach it, but it is impossible because the depth is more. Okay, so this was about Mariana Trench and Mariana Deep. Okay, that is marine deeps and marine trenches. I'll stop the session over here and I'll ask some doubts if you have. We'll clear the. Have you any doubts like regarding